पश्यामि मल्मला भवन्ति साधयामि दीप्यमानान् त्वा साधयामि रोचमानान् त्वा साधयाम्यजस्रा साधयामि बृहज्योतिषं त्वा साधयामि बोधयन्तीं त्वा साधयामि जागृति त्वा साधयामि आर्द्रं ज्वलति ज्योतिरहमस्मि ज्योतिर्ज्वलति ब्रह्माहमस्मि। శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఇవాళ యావత్తు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల ఆస్తిక మహాశైలందరికీ కూడా సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించుకునే ఒక అద్భుతమైనటువంటి రోజు. మనందరి పూర్వజన్మ సుకృతం ఈ రవీంద్ర భారతి వేదికలో ఇక్కడ వేంచేసినటువంటి ఆస్తిక మహాశైలు, వివిధ టీవీ మాధ్యమాల ద్వారా వీక్షిస్తున్నటువంటి ఆస్తిక మహాశైలందరికీ కూడా మన జీవితం ధన్యమైనటువంటి రోజు. పరమహంస పరివ్రాజకులు సాక్షాత్తు ఆదిశంకరులు స్థాపించినటువంటి చతురామ్నాయ పీఠాల్లో అత్యంత విశిష్టతను సంతరించుకున్నటువంటి తూర్పు భాగాన పూర్వామ్నాయ పీఠమైనటువంటి శ్రీ గోవర్ధన పీఠం మీద విరాజిల్లుతున్నటువంటి సాక్షాత్తు పరమేశ్వర స్వరూపం ఇవాళ మన ముందు భాసిల్లుతోంది. పరమహంస పరివ్రాజకులు పూర్వామ్నాయ శ్రీ గోవర్ధన పీఠాధీశ్వరులు జగద్గురు శంకరాచార్య శ్రీ 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 నిశ్చలానంద సరస్వతి స్వామి వారు మన తెలుగువారందరినీ, ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి ప్రజలందరినీ అనుగ్రహించడానికి, మన విజ్ఞప్తిని ఆలకించి మన అందరి గురువందనం స్వీకరించడానికి మనల్ని అనుగ్రహించినటువంటి శ్రీ 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 నిశ్చలానంద సరస్వతి భగవానుకి సాష్టాంగ ప్రణామాలతో వారికి నమస్కారాలను తెలియజేస్తున్నాను. దర్శనం ఆధ్యాత్మిక వార్తా మాసపత్రిక పూర్వజన్మ సుకృతం 13వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఇవాళ సాక్షాత్తు పరమేశ్వర స్వరూపమైనటువంటి దాదాపు 150 పుస్తకాలను రచించడమే కాకుండా యావత్తు భారతావనిలో ఎందరో శాస్త్రజ్ఞులు, ఎందరో వైజ్ఞానికులు, ఎందరో పండితులు, ఎందరో స్వామీజీలు, అన్ని రంగాల వాళ్లకు కూడా జ్ఞానబోధనందించేటువంటి సర్వసంగ పరిత్యాగులు జగద్గురు శంకరాచార్య ఇవాళ మన ముందు మనల్ని అందరినీ కూడా అనుగ్రహించి అనుగ్రహ భాషణం చేయబోతున్నారు. 2012లో దక్షిణామ్నాయ శృంగేరి శారదా పీఠాధీశ్వరులు జగద్గురు శంకరాచార్య శ్రీ 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 భారతీతీర్థ మహాస్వామి వారికి, ఆ మరుసటి సంవత్సరమే కంచికామకోటి పీఠాధీశ్వరులు శ్రీ 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 జయేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారికి, గత సంవత్సరం ఉత్తరామ్నాయ బదరీపీఠం, పశ్చిమామ్నాయ ద్వారకాపీఠం పీఠాధీశ్వరులు జగద్గురు శంకరాచార్య శ్రీ 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 స్వరూపానంద సరస్వతి స్వామి వారికి, మొన్ననే మన తెలంగాణ ప్రాంతమంతా గర్వించదగ్గ యతీశ్వరులు శ్రీ 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 మాధవానంద సరస్వతి స్వామి వారికి మనం గురువందనం సమర్పించుకునే భాగ్యం, దర్శనం కలిగింది. ఇప్పుడు 4వ ఆమ్నాయ పీఠమైనటువంటి ఋగ్వేదానికి ప్రతిరూపమైనటువంటి చతురామ్నాయ పీఠాల్లో అత్యంత విశిష్టతను సంతరించుకున్నటువంటి గోవర్ధన పీఠాధీశ్వరులు శ్రీ 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 నిశ్చలానంద సరస్వతి స్వామి వారికి కూడా గురువందనం సమర్పించుకునే భాగ్యం యావత్తు ఆస్తిక మహాశైలందరికీ ప్రధానంగా దర్శనం ఆధ్యాత్మిక వార్తా మాసపత్రిక లభించడం, ఇవాళ చతురామ్నాయ పీఠాలకు ఈ గురువందనం కార్యక్రమాల్ని పరిసమాప్తి చేసుకోవడం నిజంగా పూర్వజన్మ సుకృతం. మనమందరము కూడా స్వామివారు ఎంతో దక్షిణాదిన పర్యటిస్తూ, దక్షిణాదిలో అనేక రాష్ట్రాలను పర్యటిస్తూ సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ కోసం ఆహరహం కృషి చేస్తూ మనల్ని అనుగ్రహించడానికి ఇచ్చేసి ఇవాళ మనల్నందరికీ కూడా ఆశీర్వానుగ్రహంతో అనుగ్రహ భాషను ఇవ్వుతున్నాం. వారికి మళ్ళీ 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 సాష్టాంగ ప్రణామాలను అర్పిస్తూ యావత్తు మా తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని, తెలంగాణ ప్రజలను, మా ముఖ్యమంత్రిని, యావత్తు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలందరికీ కూడా ఆశీర్వానుగ్రహాన్ని అందించి తెలుగువారంతా కూడా సుఖశాంతులతో ఉండాలని, వారు అనుగ్రహించాలని
ఆశీర్వాదాన్ని అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా వారికి సాష్టాంగ ప్రణామాలతో కోరుకుంటూ, ఈ భాగ్యం ఆ పరమేశ్వర స్వరూపం ముందర ఈ భాగ్యాన్ని కలిగినందుకు నా జీవితం ధన్యమైందిగా భావిస్తూ, దర్శనం కుటుంబం మొత్తం ధన్యమైందిగా భావిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. సనాతన ధర్మకి. यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं नामापि च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत अखंड हो। भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 शिव
शिव शिव नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आप महान भावों ने अद्भुत अपनत्व, आस्था, उत्साह और आह्लाद पूर्वक इस भव्य कार्यक्रम का समायोजन किया है। इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में जिन महान भावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। इसका अर्थ है कि आप हिंदी जानते हैं। सज्जनों, यह भारतवर्ष विश्व का हृदय है। इसके अस्तित्व और आदर्श की रक्षा होने पर विश्व के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा संभव है। महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने जिस भाव से भावित होकर सृष्टि की संरचना की और जीवों को देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया, उस भाव का जिनको परिज्ञान है वे ही अपने जीवन को और समग्र विश्व को उचित दिशा देने में समर्थ हो सकते हैं। केनोपनिषद का उद्घोष है, इह चेद वेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिह वेदीन महति विनष्टि। देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक्षण पर्यंत कदाचित सच्चिदानंद स्वरूप आत्मतत्व को जान लिया तब तो जीवन सार्थक हुआ। कदाचित देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक्षण पर्यंत सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व को नहीं जाना तो जीवन व्यर्थ गया। जीवन को सार्थक करने की भावना से हमारा आपका यह दायित्व है कि देहत्याग के पूर्वक्षण पर्यंत देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से विविक्त गुणमय भावों से अतीत आत्म तत्व का परिज्ञान प्राप्त कर लें। केनोपनिषद के इस भाव को भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भक्त प्रवर अर्जुन के प्रति अपने शब्दों में अभिव्यक्त करते हुए कहा, यहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अर्थापत्ति प्रमाण का आलंबन लेकर विचार करें तो शरीर और संसार सदोष और विषम सिद्ध है। एकमात्र निर्दोष और सम परब्रह्म परमात्मा ही सिद्ध होते हैं। जिन महान भावों ने सदोष और विषम शरीर और संसार से मन को कर्षित कर निर्दोष और सम सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर में मन को सन्निहित कर लिया, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर सज्जनों उन्होंने पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली। अतः उन्हीं का जन्म लेना, जीवित रहना सार्थक सिद्ध होता है। जन्म का पर्यवसान मृत्यु है, यह तो आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत सिद्धांत है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। भगवान श्री कृष्णचंद्र का अर्जुन के प्रति भगवद गीता के दूसरे अध्याय में यह संदेश और उपदेश प्राप्त है। लेकिन ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो अकृतार्थ होकर देहत्याग करता है, वासना की प्रगल्भता के बल पर उसे पुनर्भव अवश्य प्राप्त होता है। इसका अर्थ है
कि जन्म का पर्यवसान मृत्यु है और मृत्यु का पर्यवसान जन्म है। जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य है। ऐसी स्थिति में विचार करने की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत ने एक संदेश और उपदेश दिया, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, परंतु ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए हो, कहीं जीवन जीविका के लिए न हो जाए। भौतिकवादियों के यहाँ जीविका होती है जीवन के लिए, उनका जीवन होता है जीविका के लिए, लेकिन अध्यात्मवेत्ता जो मनीषी होते हैं उनकी दृष्टि में जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए। जिस प्रकार जल तरंग को सदा ही जल का संगम सुलभ रहता है, तरंग माला जल से वियुक्त होकर एक क्षण भी नहीं रह सकती, उसी प्रकार हम जीवों को जीवन धन सच्चिदानंद स्वरूप जगदीश्वर का सदा ही संगम सुलभ है। सच्चिदानंद स्वरूप जीवन धन जगदीश्वर से वियुक्त होकर एक क्षण भी हम नहीं रह सकते। तथापि देहेंद्रिय प्राणांतःकरणादि अनात्म वस्तुओं में अनादि सिद्ध अहंता ममता के कारण हम भवाटवी में भटकते हैं, भवसिंधु में गोता लगाते हैं। ऐसी स्थिति में मानव जीवन को सार्थक करने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। थोड़ा विचार करके देखें, यम यम वापिस स्मरण भावम त्यत्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जिस प्रकार का चिंतन करता है व्यक्ति, उस चिंतन या भाव के बल पर ही उसे नवीन देह की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जन्म का पर्यवसान मृत्यु और मृत्यु का पर्यवसान जन्म होता है। जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप जो सर्वेश्वर हैं, वे सृष्टि के न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी हैं, जगत के निर्माता भी हैं और जगत रूप से उद्भासित होने वाले भी हैं। इसका अर्थ है भगवान जगत बनाते भी हैं और जगत बनते भी हैं। तदैक्षत सईक्षां चक्रे शोकामयत बहुश्याम तदात्मानं स्वयंकृत सर्वं खलुदं ब्रह्म वासुदेवा सर्वमिति आदि वचनों का अनुशीलन करने पर भगवान वेदव्यास के वचनों में यही तथ्य सिद्ध होता है कि प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् भगवत तत्व परमात्मा तत्व जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है, वह सृष्टि का केवल निर्माता या निमित्त कारण ही नहीं अपितु सृष्टि के रूप में उद्भासित होने वाला सृष्टि का उपादान कारण भी सिद्ध होता है। यह वेदांत दर्शन की अपूर्वता है कि हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं और जगत बनते भी हैं। इसलिए एकमात्र भगवत तत्व का विज्ञान होने पर ही सर्व विज्ञान सुलभ है। मृत्तिका का विज्ञान होने पर घटाधिकारियों का विज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार वेदांत प्रस्थान के अनुसार जगत के चरम उपादान अधिष्ठान स्वरूप सच्चिदानंद सिद्ध होते हैं। वे सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन हैं। अतएव उन भगवत तत्व का परमात्मा तत्व का विज्ञान होने पर सर्व विज्ञान सुनिश्चित है। ऐसी स्थिति में आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता का जिनके जीवन में अचंचल निश्चय प्राप्त होता है, उन्हीं का जीवन सार्थक है। मानव जीवन को सार्थक करने की आवश्यकता है सज्जनों। माना कि यह महायांत्रिक युग है। रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भौतिकता के चपेट में आकर द्रुत गति से
नास्तिकता के चपेट में सनातनी आर्य हिंदू भी आ रहे हैं। लेकिन एक विचित्र तथ्य है, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सहृदयता पूर्वक विचार करें तो सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का जो सिद्धांत है केवल दार्शनिक ही नहीं अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है, अपितु एकमात्र उत्कृष्ट है। पूरा विश्व इस तथ्य को जानता है, हृदय से मानता भी है कि वैदिक महर्षियों ने विश्व को अर्थशास्त्र दिया, धर्मशास्त्र दिया, कामशास्त्र दिया, मोक्ष शास्त्र दिया, नीति शास्त्र दिया, चिकित्सा शास्त्र दिया, वास्तु विज्ञान दिया और गणित आदि का विज्ञान दिया। इसलिए भगवान मनु ने उद्घोषित किया उच्च स्वर से, भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। जो कुछ भूत भविष्यत वर्तमान के गर्भ में है उन सब कालगर्भित पदार्थों का विज्ञान वेदों के द्वारा संभव है। वेदों का बीज है प्रणव या ओंकार, सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति। लेकिन उस ओंकार का जो महात्म्य है वह वेदों का ही महात्म्य सिद्ध होता है। मांडूक्य उपनिषद ने डंके की चोट से यह तथ्य उद्भाषित किया कि यच्चत्रिकालातीतम तदप्योंकार एव, कालगर्भित ही नहीं अपितु कालातीत जो अव्याकृत इत्यादि पदार्थ हैं उनका विज्ञान भी प्रणव के द्वारा अर्थात वेद बीज प्रणव के द्वारा अर्थात वेदों के द्वारा ही संभव है। तो जो कुछ कालगर्भित और कालातीत तत्व हैं सबका अधिगम सज्जनों वेदों के द्वारा होता है। वेदों का विलोप, वेदों की अनभिज्ञता, सनातन सिद्धांत का विलोप और सनातन सिद्धांत का विलोप विश्व के अस्तित्व और आदर्श का विलोप है। इसलिए हमारा जो वैदिक सिद्धांत है वह दार्शनिक ही नहीं अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट ही नहीं अपितु एकमात्र उत्कृष्ट मान्य है। सज्जनों, ऐसी स्थिति में हमने संकेत किया कि जीवन को सार्थक करने की विधा जो पहले थी वही आज है, आगे भी वही रहेगी। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, श्वेताश्वतर उपनिषद का उद्घोष है। लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष हो या परमात्मा तत्व की प्राप्ति का मार्ग हो, उसे प्रशस्त करने के लिए वैदिक सिद्धांत का ही आलंबन लेना चाहिए, अन्य कोई चारा या उपाय नहीं है। तो मैंने संकेत किया कि वेदांत प्रस्थान के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर क्या है, जगत के निमित्त और उपादान कारण हैं। आजकल की भाषा में मेकर और मैटर दोनों हैं। तो यह जो सृष्टि है सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति है, अतएव उनका अभिव्यंजक संस्थान है। सृष्टि के द्वारा परमात्मा की अभिव्यक्ति ही हो रही है। सृष्टि के रूप में परमात्मा अभिव्यक्त हैं और सृष्टि का आलंबन लेकर हम परमात्मा का विज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मृत्तिका के कार्य घटादि का आलंबन लेकर मृत्तिका का बोध हो ही सकता है। कटक मुकुट कुंडलादि सुवर्णाभूषणों का आलंबन लेकर सुवर्ण धातु का विज्ञान हो ही सकता है। तरंग बुद्भुत फेन आदि का आलंबन लेकर उसके समाश्रय जल का विज्ञान हो ही सकता है। तद्वत सृष्टि का आलंबन लेकर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का विज्ञान हो सकता है। लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की उपेक्षा करके उनसे दृष्टि को विमुख कर या निशा सर्वभूतानाम भगवान से विमुख होकर सृष्टि का ही जो स्वतंत्र रूप से वर्णन करते हैं उनका जीवन कथमपि सार्थक नहीं होता। एकांत में बैठकर मानव जीवन की अपूर्वता पर विचार करना चाहिए। पशुआदि शरीरों में जिस प्रयोजन की सिद्धि संभव नहीं है, देवादि शरीरों में भी जिस प्रयोजन की सिद्धि दुर्गमता पूर्वक ही संभव है, उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए मानव शरीर हमको प्राप्त हुआ है। हमको इस प्रकार देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन की प्राप्ति हुई है, जिसका सदुपयोग करके जीवन काल में ही हम
भगवत तत्व का अधिगम प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं को कृतार्थ कर सकते हैं। यह जो स्थूल शरीर है, जो एक दिन शव के रूप में परिलक्षित होता है, यह समग्र सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेन्द्रिय पंचक, अंतःकरण चतुष्टय या अंतःकरण पंचक, प्राण पंचक के संवेद स्वरूप का नाम लिंग या सूक्ष्म शरीर है। यह स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। सूक्ष्म शरीर अविद्यात्मक मलिन सत्वात्मक कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है और कारण शरीर जीव का अभिव्यंजक संस्थान है। जीव जीवन धन सच्चिदानंद स्वरूप शिवात्म तत्व का अभिव्यंजक संस्थान है। एक नियम है, अभिव्यंग्य की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग्य की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। तो स्थूल शरीर की महिमा क्या है? इसके बाह्य हिस्से में, बाह्य भाग में पंचक ज्ञानेन्द्रियों को, पंच कर्मेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। इसके अभ्यंतर हिस्से में, भाग में पंच प्राणों को, अंतःकरण चतुष्टय या अंतःकरण पंचक को अभिव्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। तो यह स्थूल शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा समग्र सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति होती है और सूक्ष्म शरीर में कारण शरीर को अभिव्यक्त करने की क्षमता है। और कारण शरीर में सुषुप्ति दशा का आलंबन लें तो जीव को अभिव्यक्त करने की क्षमता है, प्राज्ञ संज्ञक जीव को। और जो जीव है उसका तात्विक स्वरूप परमात्मा ब्रह्म ही है। अतः जीव में परमात्मा तत्व को अभिव्यक्त करने की क्षमता है। मानव जीवन की अपूर्वता क्या है? देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से अतीत जो भगवत तत्व है, आत्म तत्व है, उसका श्रवण मनन निध्यासन कर अपने ही तात्विक स्वरूप भगवत तत्व का विज्ञान प्राप्त करके जीवन को सार्थक करना चाहिए। इसीलिए श्रुति का उद्घोष है, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। दर्शनीय कोई है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही, श्रवण करने योग्य कोई है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही, मनन करने योग्य है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही, निधिध्यासन या ध्यान करने योग्य है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही। पुस्तक बाद में पढ़ लीजिएगा। निधिध्यासन करने योग्य है या ध्यान करने योग्य है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही। इसका अर्थ क्या है? हमको आपको भगवत कृपा से और पुण्यों के प्रभाव से श्रवण शक्ति से युक्त जीवन प्राप्त है, मननी शक्ति से युक्त जीवन प्राप्त है, ध्यान अभ्यास या निधिध्यासन शक्ति से युक्त जीवन प्राप्त है और दर्शन शक्ति से युक्त जीवन प्राप्त है। कदाचित अनात्म वस्तुओं के श्रवण मनन निधिध्यासन और दर्शन में ही अपने समग्र जीवन का उपयोग और विनियोग करते हैं तो जीवन सार्थक नहीं हो सकता। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ, हम आप जो जीव हैं, हमारी आपकी चाह का, इच्छा का तो सचमुच में विषय है, उसी का नाम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। कोई कह सकता है कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भगवान को, परमात्मा को या ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर क्या है सज्जनों? जीव की चाह का, इच्छा का जो सचमुच में अर्थात वास्तव विषय है, उसी का नाम परमात्मा है। ध्यान देकर सुनिए। हमको आपको भूख लगती है तो विश्व में अन्न का, भोज्य पदार्थ का अस्तित्व है या नहीं? कदाचित जगत में भोज्य पदार्थ का अस्तित्व ही ना होता तो किसी भी प्राणी को भूख नहीं लगती। भूख का लगना डंके की चोट से भोजन के अस्तित्व को सिद्ध करता है। कदाचित विश्व में जल का, पानी, नीरू, तन्नी का अस्तित्व ही न होता तो किसी को प्यास नहीं लगती। प्यास का लगना डंके की चोट से यह तथ्य ख्यापित करता है कि जल का अस्तित्व अवश्य है। हमको आपको श्रोत्र इंद्रिय प्राप्त है। अगर शब्द का अस्तित्व विश्व में न होता
तो भगवत कृपा से हमको श्रोत्र इंद्रिय सुलभ नहीं होती। हमको त्वक इंद्रिय प्राप्त है। अगर विश्व में स्पर्श का अस्तित्व ही ना होता तो हमको आपको त्वक इंद्रिय नहीं प्राप्त होती। हमको आपको नेत्र इंद्रिय प्राप्त है। इंद्रियां अतीन्द्रिय होती हैं। हमको आपको नेत्र इंद्रिय प्राप्त है। अगर विश्व में नील पीत श्वेत इत्यादि रूप का अस्तित्व ही ना होता तो हमको नेत्र की प्राप्ति क्यों होती? किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए नेत्र की प्राप्ति होती? हमको आपको रसनेन्द्रिय प्राप्त है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि विश्व में रस का अस्तित्व है। अगर विश्व में रस का अस्तित्व ही ना होता तो हमको भगवत कृपा से रसनेन्द्रिय क्यों प्राप्त होती? हमको आपको नासिका इंद्रिय प्राप्त है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि विश्व में गंध नामक गुण अवश्य है। अगर गंध नामक कोई गुण ही ना होता तो हमको नासिका इंद्रिय क्यों प्राप्त होती? तद्वत जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं उनको सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा होकर अवशिष्ट रहने की भावना प्राप्त है, पिपासा प्राप्त है। अतएव डंके की चोट से यह तथ्य ख्यापित होता है कि सच्चिदानंद कोई तत्व है। और एक विचित्र बात है, अगर वह सच्चिदानंद जो कि हमारी चाह का सचमुच में विषय है हमसे भिन्न होगा तब अयोगास्पद, संयोगास्पद, वियोगास्पद होने के कारण हमको पुनः मृत्यु, अज्ञता, जड़ता और दुख का भय प्राप्त होगा। मृत्यु, जड़ता, अज्ञता और दुख के चपेट से सदा के लिए मुक्त होने की भावना डंके की चोट से सिद्ध करती है कि हमारी आपकी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम उपनिषदों में आत्मा या परमात्मा है। इसलिए नास्तिक से नास्तिक परमात्मा का अस्तित्व स्वीकार करने के लिए उत्सुक और बाध्य हो सकता है। हम एक उदाहरण देते हैं। हम मृत्यु के चपेट से कब मुक्त हो सकते हैं? जब स्वयं को मृत्युंजय अमृत स्वरूप सदरूप नित्य समझें। सत्यम ब्रह्म, उसी का नाम तो परमात्मा है। हम अज्ञता जड़ता के चपेट से कब मुक्त हो सकते हैं? जब स्वयं को अखंड विज्ञान स्वरूप समझ लें। विज्ञानम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, उसी का नाम तो ब्रह्म है। हम दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों के चपेट से कब मुक्त हो सकते हैं? जब स्वयं को अखंड आनंद स्वरूप समझें। आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, उसी का नाम तो आत्मा है। हमारी आपकी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम परमात्मा है। अतः कोई भी व्यक्ति परमात्मा के अस्तित्व को न माने यह संभव नहीं है। बौद्धों ने हमारे सिद्धांत को अपने शब्दों में गुम्फित उद्भाषित करते हुए कहा, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। बुद्धि या जीव का स्वभाव होता तत्व या सत्य का पक्षधर होना। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति के सम्मुख भी अगर हम इस ढंग से परमात्मा के अस्तित्व का प्रतिपादन करेंगे तो वह भी आस्तिक हुए बिना नहीं रहेगा। हम वैज्ञानिक धरातल पर दार्शनिक तथ्यों को ख्यापित करना उचित समझते हैं। सावधान, पुष्पों से बनी हुई यह माला है। इस माला को पकड़कर बल और वेग पूर्वक हम ऊपर उछालें। बल और वेग के निरस्त होने पर यह पुष्पों से बनी हुई माला धरित्री, पृथ्वी, भूमि की ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रहेगी। क्यों? माला में गंध नामक गुण सन्निहित है और गंधवती पृथ्वी है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंश ही की ओर आकृष्ट होता है। इसलिए ऊपर से गिरता हुआ फल, वृक्ष की शाखा से लगा हुआ फल टूटने पर, पुष्प, पत्र टूटने पर पृथ्वी की ओर ही आकृष्ट क्यों होते? क्योंकि पृथ्वी अंशी है, वो अंश है। प्रत्येक अंश का आकर्षण का क्षेत्र अंशी ही होता है, उसका वास्तव स्वरूप ही होता है। जल की धारा यांत्रिक विधा का अवलंबन लेकर ऊपर पहुंचा चुके हैं। जल से परिपूर्ण टोटी को खोलने पर जल की धारा नीचे की ओर क्यों आप्लावित होती है? क्योंकि अंश है। अंशी कौन है? उद्गम स्थान, महोदध या सागर या समुद्र। हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, दीप को प्रज्वलित कर चुके हैं हम लोग। दीप की शिखा ऊर्ध्व गति क्यों होती है? क्योंकि अंश है। अंशी कौन है? नभोमंडल में विद्यमान सूर्य आदित्य।
इस दृष्टांत के बल पर भी यही तथ्य सिद्ध होता है कि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंश ही की ओर आकृष्ट होता है। हम जीवों के भी आकर्षण के विषय सच्चिदानंद तत्व ही हैं। एक विचित्र बात है, आज तक हम आप कभी मर ही गए होते, हमारी मौत ही हो गई होती, मृत्यु के ग्रास ही हम हो गए होते, तो वर्तमान में अपनी विद्यमानता की अनुभूति कैसे करते अहम अस्मि। व्यवहार दशा में अपने अस्तित्व की अनुभूति करते हैं, मैं हूँ अहम अस्मि। यह अनुभूति डंके की चोट से सिद्ध करती है। आज तक हम आप नहीं मरे, कभी भी कहीं भी किसी कारण से भी हम आप नहीं मरे, आगे भी मर नहीं सकते। मृत्यु का केवल भय प्राप्त है, मृत्यु प्राप्त नहीं है, मृत्यु का केवल भय प्राप्त है। आगे भी अगर मृत्यु नाम की देवी मूर्तिमती होकर हमारे सामने प्रस्तुत होगी तो हम उसके दृष्टा या साक्षी ही सिद्ध होंगे। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदः। दृश्य ही सिद्ध होगी मौत भी, अर्थात भविष्य में भी मृत्यु की संभावना नहीं है। फिर प्रश्न उठता है कि मृत्यु का भय क्यों प्राप्त है। मृत्युग्रस्त शरीर में अहंता ममता के कारण हमको मृत्यु का भय प्राप्त है, आरोपित भय है। वस्तुतः मृत्यु प्राप्त नहीं है, मृत्यु का आरोपित भय प्राप्त है। और मृत्यु का भय भी कादाचित का है। गाढ़ी नींद में किसी को मौत का भय प्राप्त होता है क्या? भाजपाई हो या कांग्रेसी, सपाई हो या बसपाई, यहाँ कौन सी पार्टी चलती है मुझे नहीं पता, जो भी पार्टी हो, अच्छा स्त्री हो या पुरुष, नर हो या वानर, गाढ़ी नींद जिसको जब तक सुलभ होती है, जितने क्षण तक सुलभ होती है, किसी को मृत्यु का भय प्राप्त होता है क्या? मृत्यु का भय क्यों नहीं प्राप्त होता? मृत्युग्रस्त शरीर और संसार को लेकर गाढ़ी नींद या सुसुप्ति में अहंता ममता की प्राप्ति नहीं होती। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध का अध्ययन कीजिए। अहमिच प्रसुप्ते, अहंकार भी जब सो जाता है, विलीन हो जाता है, तब गाढ़ी नींद प्राप्त होती है। द्वंद्वों की पहुंच कहाँ तक? अहंकार तक। द्वंद्वों की प्राप्ति व्याप्ति कब तक? अहंकार तक। अहम के सो जाने पर सर्दी गर्मी, शीत उष्ण, भूख प्यास, मानापमान, हानि लाभ आदि किसी द्वंद्व की पहुंच हम आप तक नहीं होती। कामक क्रोधादि विकार, मनोविकार, कामक क्रोधादि मनोविकारों की पहुंच कब तक? जब तक अहंकार उच्छलित है तब तक। अहमिच प्रसुप्ते, गाढ़ी नींद में अहम के सो जाने पर किसी भी व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, ये सब जो मनोविकार हैं, किसी मनोविकार की प्राप्ति होती है क्या? नहीं ना। और गाढ़ी नींद में किसी को आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक त्रिविध तापों में किसी भी ताप की प्राप्ति या व्याप्ति होती है क्या? नहीं ना। दुख की पहुंच कब तक? दुख की गति कहाँ तक? अहंकार तक। अहंकार सो जाता है गाढ़ी नींद में, इसलिए हम आप तक त्रिविध तापों में किसी ताप की प्राप्ति या व्याप्ति या पहुंच नहीं है। थोड़ा विचार कीजिए। बहुत ऊंचे ऊंचे विद्वान मनीषी आप जैसे यहाँ पर विद्यमान हैं, थोड़ा विचार कीजिए। अन्य जो दार्शनिक हैं, विचारक हैं, वे कहते हैं कि सुषुप्ति में दुख का अभाव तो है, लेकिन सुखोपलब्धि नहीं है। लेकिन पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी महाभाग ने क्या लिखा? अगर सिद्ध हो जाए कि किसी कक्ष में या क्षेत्र में अंधकार का भाव है, तमस का भाव है, तो प्रकाश का सद्भाव मानने के लिए हम बाध्य हैं या नहीं? प्रकाश की विद्यमानता के बिना अंधकार की निवृत्ति कैसे हो सकती है? भोजन के बिना भूख की निवृत्ति कैसे हो सकती है? भूख की निवृत्ति है तो मानना पड़ेगा कि भोजन किया है। प्यास की निवृत्ति है तो मानना पड़ेगा कि पानी पिया है। इसी प्रकार दुख का सुषुप्ति में अभाव है, सार्वभौम सिद्धांत है यह, तो मानना पड़ेगा कि सुखोपलब्धि है। बल्कि ऊंची बात, मांडूक्य उपनिषद ने
जागर दशा में, जागृत में जीव को क्या कहा? स्थूल भुक, स्थूल विषयों का भोक्ता होकर, अभीष्ट स्थूल विषयों का भोक्ता होकर हमको आनंद की समुपलब्धि जागृत अवस्था में होती है। लेकिन स्वप्नावस्था में प्रवियुक्त भुक, वासनात्मक अभीष्ट विषयों का संसेवन करने पर हमको सुख की अनुभूति होती है। और गाढ़ी नींद में आनंद भुक, साक्षात आनंद के ही हम भोक्ता होते हैं। इक्षुदंड, गन्ना जिसको कहते इक्षुदंड, उसको चबाएंगे तो श्रम होगा, ओठ छिलने की संभावना होगी, दांत टूटने की संभावना होगी। लेकिन इक्षुदंड को पेल कर एक गिलास गन्ने का रस, हिंदी में गन्ना, गन्ने का रस, इक्षुदंड का रस आपको दे दिया जाए, बहुत सुगमता पूर्वक आप पी लेंगे, गट कर जाएंगे। इसी प्रकार गाढ़ी नींद में साक्षात आनंद ही हमारा आपका भोग्य होता है। इसलिए मांडूक्य उपनिषद कहती है गाढ़ी नींद में आनंद भुक। भौतिकवाद पर थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए, भौतिकवाद पर गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। कम्युनिज्म पर, भौतिकवाद पर गाढ़ी नींद का, सुसुप्ति का वेग ही पानी फेर देता है। कैसे? अगर शरीर ही आत्मा है या चेतना विशिष्ट ही शरीर आत्मा है, लोकायतिकों चारवाकों के मत में, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले महानुभावों के मत में चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। सचमुच में अगर चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा हो तो शरीर को भुलाकर गाढ़ी नींद प्राप्त करने की भावना क्यों प्राप्त हो? सचमुच में अभीष्ट विषय के संसेवन से प्राप्त आह्लाद, सुख, विषयानंद ही जीवन को कृतार्थ करने में, सफल करने में समर्थ हो। तो जिनको प्रिय मोद प्रमोद विषयजन्य आनंद भरपूर सुलभ है, वे प्रिय मोद प्रमोद संयक विषयजन्य भरपूर आनंद को भुलाकर सोने की भावना क्यों व्यक्त करें? इसलिए गाढ़ी नींद का वेग ही भौतिकवाद पर पानी फेर देता है। सज्जनों, अगर भौतिकवादी भी देह को भुलाकर विषयजन्य आनंद का परित्याग कर गाढ़ी नींद न प्राप्त करें तो 2-4 दिनों के बाद विक्षिप्त होने लगेंगे, पागल होने लगेंगे। इसका मतलब भौतिकवाद का पर्यवसान पागलपन में है। अगर कोई भौतिकवादी पागल होने से बचा हुआ है तो समझना चाहिए कि हृदय से वो अपने सिद्धांत को, अपनी मान्यता को रोज ही त्याग देता है। भौतिकवाद की मान्यता को त्यागे बिना तो गाढ़ी नींद ही सुलभ नहीं होगी। और जब गाढ़ी नींद सुलभ नहीं होगी तो जिनको गाढ़ी नींद सुलभ होती नहीं और निर्विकल्प समाधि प्राप्त करने की क्षमता नहीं, वो तो विक्षिप्त हुए बिना नहीं रह सकते। एतावता यह सिद्ध होता है कि शरीर ही आत्मा नहीं है। आप थोड़ा विचार कीजिए, कल्पना कीजिए, अपने भवन में पलंग पर, पर्यंक पर सोए हुए हैं, लेकिन स्वप्नावस्था में हिमालय की ओर चलते हैं, बद्रीनाथ का दर्शन करते हैं। तो जिस शरीर से स्वप्नावस्था में बद्रीनाथ तक पहुँचते हैं, उनका दर्शन करते हैं, वह शरीर इस शरीर से भिन्न है या नहीं? स्थूल शरीर को तो पलंग पर लिटा चुके हैं, पर्यंक पर, लेकिन वो कौन सा शरीर है स्वप्नावस्था में जिसके माध्यम से हम बद्रीनाथ का दर्शन करते हैं? इस दृष्टांत के बल पर तो यही सिद्ध होता है कि शरीर के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। जगने पर इस शरीर में तादात्म्यापत्ति होती है, और जब तक स्वप्नावस्था हो रहती है तब तक स्वप्न के शरीर में तादात्म्यापत्ति होती है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ। किसी की आयु 80 वर्षों की पूर्ण हो चुकी है, कदाचित 1 वर्ष की सीमा में 10 ही स्वप्नों को उसने देखा हो, तो 80 वर्षों की अवधि में 800 स्वप्न के शरीर उसके नष्ट हो गए या नहीं? लेकिन अपने को तो नष्ट नहीं मानता। इससे सिद्ध होता है कि शरीर के नाश से जीव का नाश नहीं होता। शरीर की संख्या 800 हो जाने पर भी अपनी संख्या 1 मानता है या नहीं? इससे यह भी सिद्ध होता है कि देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। अब तक हमने अकाट्य युक्तियों से वेदादि शास्त्रों के आधार पर सिद्ध किया
कि वास्तव में इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत दार्शनिक ही नहीं अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सज्जनों विजयी है। साथ ही साथ भूदेवी ने, पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके महाराजा धीराज आदिराज पृथु को प्रबोधित किया। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंध अध्याय 18 श्लोक 3, 4, 5। राजन, कदाचित कोई लौकिक उत्कर्ष का ही पक्षधर हो, शरीर को ही आत्मा मानता हो, भौतिकता की धारा में ही बहने वाला हो, परलोक को नहीं मानता हो, देहातिरिक्त और देहांतर से संबद्ध जीवात्मा का अस्तित्व ना मानता हो, परमात्मा को ना मानता हो, लौकिक उत्कर्ष का ही पक्षधर हो, तो भी सनातन वैदिक आर्य मनीषियों के द्वारा दृष्ट और प्रयुक्त उपायों का आलंबन लिए बिना कोई भी भौतिक उत्कर्ष नहीं प्राप्त कर सकता। भाषा समझ में आती है? सनातन वैदिक आर्य महर्षियों ने लौकिक उत्कर्ष का जो मार्ग ख्यापित किया, उसको न मानने वाला भौतिक विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर भी लौकिक उत्कर्ष नहीं प्राप्त कर सकता। हाथ कंगन को आरसी क्या? सुनिए, विश्व में जितने वैज्ञानिक आजकल हैं, अगर वो वैदिक नहीं है तो विकास को उन्होंने जो परिभाषित किया है, उस परिभाषा को उन्होंने जिस विधा से क्रियान्वित किया है, उसके गर्भ से विस्फोट निकल रहा है या सचमुच में विकास प्राप्त हो रहा है? आस्तिक नास्तिक, वैदिक अवैदिक उभय सम्मत ऊर्जा के कितने स्रोत हैं? कम से कम हम लोग तो आकाश आदि को भी ऊर्जा का स्रोत मानते हैं, लेकिन आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैदिक उभय सम्मत ऊर्जा के स्रोत हैं पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। आजकल के जितने वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो विकास को आधुनिक विधा से परिभाषित और महायंत्रों के माध्यम से क्रियान्वित किया है, उसके गर्भ से पृथ्वी कुपित, दूषित और क्षुब्ध हुई है या नहीं? जल विकृत, दूषित और क्षुब्ध या कुपित हुआ है या नहीं? तेज विकृत, दूषित, क्षुब्ध और कुपित हुआ है या नहीं? पवन भी विकृत, दूषित, क्षुब्ध या कुपित हुआ है या नहीं? ऊर्जा के चारों स्रोतों को आधुनिक ढंग से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने वालों ने कुपित कर रखा है। जिन तत्वों से शरीर की संरचना हुई है, उन तत्वों को विकृत, दूषित और क्षुब्ध या कुपित करने पर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ कैसे रह सकता है और विकास के गर्भ से विस्फोट की प्राप्ति हुए बिना कैसे रह सकती है? इस तथ्य पर विश्व को विचार करने की आवश्यकता है। एक संकेत और मैं करता हूँ, सावधान। पूजन आदि में, पूजन आदि का महत्व है। कम समय लगता तो हम अधिक समय तक बोलते लेकिन वह भी शिष्टाचार परंपरा है, आपने विधिवत उसका निर्वाह किया। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, स्वतंत्र भारत में भी भारत को सनातन विधा से विकसित निर्मित करने का प्रयास आज तक नहीं किया गया। शिक्षा की हमारी प्रणाली सनातन विधा के विरूप है। रक्षा की हमारी प्रणाली अपनी नहीं है। कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प हमारे अपने नहीं हैं। उद्योग और सेवा के प्रकल्प हमारे अपने नहीं हैं।
संविधान की आधारशिला हमारी अपनी नहीं है। स्वतंत्र भारत में भी हिंदू एक नंबर का नागरिक नहीं है। तो हम अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा कैसे कर सकते हैं? विचार करने की आवश्यकता है कि विभाजन के बाद का भारत जैसा होना चाहिए था, क्या भारत को वैसा बनाने का आज तक कभी प्रयास किसी राजनीतिक दल ने या राजनेता ने किया? इसलिए सैद्धांतिक धरातल पर भारत घोर परतंत्र देश है। अब चीन जाइए, चीन की भाषा न जानने पर, केवल अंग्रेजी के बल पर वहाँ आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। चीन को अपनी लिपि और भाषा पर नाज है, गर्व है, लेकिन भारत में स्थिति यह है कि संस्कृति संस्कृत दोनों के विलोप को ही विकास के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए सैद्धांतिक धरातल पर भारत स्वतंत्र हो, हम अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा कर सकें, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। लगभग 10-15 मिनट और थोड़ा विचार कीजिए। मैंने प्रवचन कहाँ से प्रारंभ किया था? सृष्टि की संरचना का और मानव जीवन की संप्राप्ति का जो उद्देश्य है, अगर हम उसको नहीं जानते तो विश्व के लिए सरदर्द बन सकते हैं और अपने जीवन को धन्य नहीं कर सकते। इसीलिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में वेदस्तुति नामक एक अध्याय है, उसके दूसरे श्लोक पर विचार कीजिए। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणां जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। जनानाम शब्द का अर्थ किया श्रीधर स्वामी ने जीवार्था सृष्टि। यहाँ जीवार्था सृष्टि का वर्णन है। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणां जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए, यहाँ 4 शब्दों का प्रयोग किया गया, मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। अर्थ धर्म काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि जीवों को हो सके। महाप्रलय के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत जो जीव कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके, उन्हें सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने कृतार्थता का अवसर प्रदान करते हुए देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। लक्ष्य 4 निर्धारित किया, मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। चरम लक्ष्य अकल्पनाय च कैवल्य मोक्ष। उसकी प्राप्ति के लिए धर्म अर्थ और काम, और गीता का 7वां अध्याय धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। धर्म के अविरुद्ध अर्थ और काम होना चाहिए। धर्म के विरुद्ध अगर अर्थ होगा तो अर्थ के गर्भ से अनर्थ निकलेगा। एक विचित्र बात है, विश्व में जितने आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, चाहे वो नोबेल पुरस्कार ही प्राप्त क्यों ना हो, भारत या अमेरिका के अर्थशास्त्री जहाँ कहीं के हों, अगर धर्म के अविरुद्ध और अनुकूल अर्थ को परिभाषित नहीं कर सकते तो अर्थ के गर्भ से अनर्थ तो निकल सकता है। अर्थ का पर्यवसान अर्थ नामक पुरुषार्थ में नहीं हो सकता। मैं उदाहरण देता हूँ। बहुत अच्छा होता कि यहाँ माननीय मनमोहन सिंह जी, मोदी जी भी होते, और ओबामा जी भी होते, ट्रंप जी भी होते, बुश जी भी होते, और नरसिंह राव जी जहाँ हैं वहाँ से भी सुनते होते। क्या जिस ढंग से आजकल अर्थ को परिभाषित किया गया है, वो अर्थ सचमुच में अर्थ है या अनर्थ में हेतु है? श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध के अध्याय 23 में द्यूत, मध्य आदि 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त कर सके तो उस अर्थ का नाम सज्जनों पारिभाषिक या सचमुच में अर्थ होता है, नहीं तो अर्थ का नाम अनर्थ होता है। कोई ऐसा प्रांत है भारत में द्यूत, जुआ, सट्टा, लॉटरी के बल पर न चलता हो?
अर्थ का स्रोत जहाँ द्यूत को न माना जाता हो, नशीली वस्तु मद्य इत्यादि को अर्थ का स्रोत न माना जाता हो, लेकिन छांदोग्य उपनिषद के एक राजा धीराज ने नमेस्तेनो जनपदे, ब्राह्मणों मेरे राज्य में कोई स्तेन चोर नहीं है, कोई जुआरी नहीं है, कोई मदिरा पीने वाला नहीं है, कोई ऐसा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो यज्ञोपवीत संपन्न हो और अग्निहोत्री ना हो, ऐसा नहीं है, और कोई स्त्री स्वैरिणी नहीं है, क्योंकि हमारे राज्य में कोई पुरुष दुश्शील नहीं है। जब पुरुष दुश्शील होते हैं तो देवियों के शील पर आघात होता है। छांदोग्य उपनिषद में एक राजा धीराज ने नमेस्तेनो जनपदे कहकर उद्घोषित किया है, तो मैं डंके की चोट से कह सकता हूँ कि श्री सूक्तम, आंध्र में तो वेदों का आज भी बहुत प्रचार है, अब तेलंगाना में भी वही है, वेदों का अभी भी प्रचार है। श्री सूक्तम लीजिए, महाभारत लीजिए, अथर्ववेदादि लीजिए, आजकल जिस ढंग से अर्थ को परिभाषित किया गया है, उस अर्थ के गर्भ से अनर्थ निकल रहा है। सचमुच में अर्थ क्या है? परम अर्थ परमात्मा है या नहीं? परम अर्थ परमात्मा, कार्य की अपेक्षा कारण अधिक ऊंचा अर्थ होता है या नहीं? परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति में साक्षात अथवा परंपरा से जिसका उपयोग और विनियोग हो, वह अर्थ है। हमारे यहाँ अर्थ की परिभाषा यह है, और वैसे श्री सूक्तम के अनुसार पृथ्वी अर्थ है। अंग्रेजी वाले पृथ्वी को अर्थ कहते हैं या नहीं? हमारा ही तो शब्द है। श्री सूक्तम के अनुसार विचार करें तो पृथ्वी अर्थ है, जल अर्थ है। पृथ्वी को क्या कहते हैं? वसुंधरा। वसु का अर्थ है या नहीं? जल को रत्नाकर कहते हैं, पर्वत को रत्नाकर कहते हैं। रत्न का अर्थ धन है या नहीं? और एक विचित्र बात है, सुवर्ण को क्या कहते हैं? नैयायिक तेजस मानते या नहीं? महाभारत ने सुवर्ण को तेजस माना है। सुवर्ण धातु, सोना को तेजस माना गया। सुवर्ण धन है या नहीं? वायु धन है या नहीं? और आकाश धन है या नहीं? इसका मतलब क्या है? परब्रह्म परमात्मा परम धन, परम अर्थ हैं। उनकी जो भी अभिव्यक्ति है उसका नाम अर्थ है। और वस्तुतः जिस वस्तु का उपयोग परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति के लिए हो, उसी का नाम अर्थ है। अगर परम परमात्मा, परम धन परमात्मा की प्राप्ति में किसी भी वस्तु का या जीवन का या व्यक्ति का साक्षात अथवा परंपरा से उपयोग न हो, तो अर्थ कहने पर भी वह अनर्थ है। एक विचित्र बात है, दरिद्रता के जितने स्रोत हैं आजकल के अर्थशास्त्री उन्हीं को समृद्धि के स्रोत मान रहे हैं। इसलिए अर्थ की परिभाषा भी भौतिकवादियों के द्वारा जो प्राप्त है वह अनर्थ में हेतु है। और काम की परिभाषा थोड़ा विचार कीजिए। महाभारत में पांडव कितने? 5। जितने भूत उतने प्राण पांडव। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंचभूत हैं या नहीं? उन्हीं के अधिष्ठात्री देव का अवतार 5 पांडव हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ऊपर से गिनेंगे तो तस्माद व एतस्मादात्मना आकाश संभूत है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत हैं। पांडव कितने हैं? 5। युधिष्ठिर धर्मावतार, धर्म का विज्ञान वेदों से होता है, अथातो धर्म जिज्ञासा। और वेद जो हैं शब्दात्मक हैं, और आकाश का गुण है शब्द। और धारणात् धर्म है, महाभारत कर्म पर, शांति पर, मत्स्य पुराण। युधिष्ठिर धर्मावतार हैं। इसका मतलब आकाश के अधिदैव की युधिष्ठिर के रूप में अवतार मान्य है। आकाश के अधिदैव का युधिष्ठिर के रूप में अवतार मान्य है। और वायु के अवतार कौन है? भीमसेन थे या नहीं? और तेज, देवराज इंद्र तेज, विद्युत के अधिदैव, तेज के अधिदैव कौन है? देवराज इंद्र। उनके अवतार अर्जुन।
और नकुल सहदेव कौन है? जल और पृथ्वी का अधिष्ठात्री देव। अश्विनी कुमार नासत्य और दस्र, अश्विनी कुमार दो हैं, एक का नाम है नासत्य, दूसरे का नाम है दस्र। इन दोनों के अवतार कौन है? नकुल सहदेव। 5 भूत हैं, पांचों भूत के अधिष्ठात्री देव ही 5 पांडवों के रूप में आए। इसलिए महाभारत के शांति पर्व में अर्थशास्त्र विशारद किनको माना गया है? अर्जुन को, क्योंकि इंद्र के अवतार हैं, तेज के अवतार हैं, और अर्थ में तेजस कहा गया है सुवर्ण धातु को। और काम शास्त्र विशारद वन पर्व में किसको कहा गया है? भीमसेन को, वायु के अवतार हैं। जो वायु तत्व वलिष्ठ है, जो बलवान नहीं होगा वो तो विषय भोग में दक्षता ही नहीं प्राप्त कर सकता है। महाभारत के वन पर्व में काम को परिभाषित किसने किया? तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार भीमसेन ने। नकुल सहदेव कौन है? नकुल सहदेव अश्विनी कुमार के अवतार हैं, धर्म पुरुषार्थ के जानकार हैं, विशेषज्ञ। और युधिष्ठिर कौन है? धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थों को मोक्ष पर्यवसायी बनाने वाले युधिष्ठिर हैं। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, आजकल समृद्धि के जितने स्रोत माने जा रहे हैं भौतिक अर्थशास्त्रियों के द्वारा, विचार करके देखें तो वो सब दरिद्रता के स्रोत हैं। इसलिए मैं एक संकेत करता हूँ, श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के आधार पर विचार कीजिए। विज्ञान की 3 धाराएं होती, विज्ञान साइंस विज्ञान की 3 धाराएं। 2 धाराएं भौतिकवादियों के पास होती, विरोचन के पास। विरोचन जैसे महानुभावों के पास विज्ञान की 2 धाराएं होती। पहली धारा कौन है? गीता के 18वें अध्याय के अनुसार तमोगुण की, तमस की प्रधानता जब बुद्धि पर होती है तब बुद्धि धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म समझती है, सर्वथा विपरीत बोध कराता है तमोगुण या नहीं। अर्थ को अनर्थ, अनर्थ को अर्थ, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, प्रवृत्ति को निवृत्ति, निवृत्ति को प्रवृत्ति, भय को अभय, अभय को भय। आजकल जो विश्व में अर्थ नामक पुरुषार्थ को परिभाषित किया गया है, उन वैज्ञानिकों के द्वारा, अर्थशास्त्र के मनीषियों के द्वारा, जिनकी बुद्धि तमोगुण से आक्रांत है, इसलिए उनके द्वारा परिभाषित जो अर्थ है उसके गर्भ से अनर्थ तो प्राप्त हो सकता है, स्वप्न में भी अर्थ नहीं प्राप्त हो सकता। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अभी तो भारत नहीं चेता है, लेकिन मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। सन 95 में विश्व बैंक के अध्यक्ष ने एक क्रिश्चियन महिला को, बहुत विदुषी, दिल्ली में मेरे पास भेजा 5 मई 1995। वो जो महिला थी बहुत विदुषी थी, एक चर्च के चेयरमैन थी और वर्ल्ड फेस्ट डेवलपमेंट डायलॉग नामक संस्था की सदस्य थी। विश्व बैंक ने 92, 93, 94, 95 में यह निष्कर्ष निकाला, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, विश्व में जितना राजनीतिक तंत्र है किसी भी देश का हो, वह विश्व की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि दिशाहीन है। इसलिए विश्व बैंक ने सोचा धार्मिक या आध्यात्मिक जो तंत्र हैं उनसे परामर्श लिया जाए कि विश्व को आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता के चपेट से, तृतीय विश्व युद्ध के चपेट से मुक्त करने की स्वस्थ विधा क्या हो सकती है। भारतवर्ष में विश्व बैंक ने मेरा नाम कहीं से प्राप्त किया, उस महिला को भेजा। विश्व बैंक का एक प्रश्न यह था कि संभावित तृतीय विश्व युद्ध आर्थिक विपन्नता और
अनावश्यक विषमता के कारण हो सकता है, उसको टालने के लिए वैदिक वाङ्मय में क्या विधा है। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया? सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं की व्यवस्था को न मानने पर आर्थिक विषमता और विपन्नता के चपेट से समाज को नहीं मुक्त किया जा सकता। सनातन विशेषता क्या है? हर व्यक्ति की जीविका वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार जन्म से सुरक्षित है या नहीं? शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प को सदा के लिए सबके लिए संतुलित रखने की वैज्ञानिकतम विधा का नाम सनातन वर्ण व्यवस्था है। जहाँ वो सनातन वर्ण व्यवस्था टूट गई, अमेरिका, ब्रिटेन आदि में वर्ण संकरता छा गई, उनके पास तो वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। लेकिन मैं एक बहुत विचित्र तथ्य यहाँ प्रकाशित करना चाहता हूँ। जिनके यहाँ राज परंपरा नहीं है, परंपरा के प्राप्त क्षत्रिय नहीं हैं, वे ब्रिटेन वासी भी वैकल्पिक राज परिवार को मानकर चलते या नहीं? एलिजाबेथ विक्टोरिया से भी अधिक समय से शासन कर रही है या नहीं? जिनके यहाँ क्षत्रिय परंपरा का विलोप हो चुका है, वर्ण संकरता के चपेट में पूरा देश आ चुका है, उनके यहाँ भी वैकल्पिक राज परंपरा को स्थिर रखने का प्रयास किया गया है। और वे भी पोप महोदय को अपने रिलीजन, पंथ या मजहब के सर्वोत्कृष्ट गुरु के रूप में, यहाँ तक कि राष्ट्राध्यक्ष, सेनाध्यक्ष के रूप में ख्यापित करते हैं। भारत में मन अतिथि के रूप में, अभ्यागत के रूप में विद्यमान दलाई लामा जी तिब्बत के संविधान के अनुसार न केवल बौद्धों के सार्वभौम धर्मगुरु हैं, बल्कि वे राष्ट्राध्यक्ष तिब्बत की दृष्टि से और सेनाध्यक्ष भी होते हैं। लेकिन अंग्रेजों की कूटनीति, भगवत पाद, शिवावतार, शंकराचार्य महाभाग, जो सचमुच में काल गणना की दृष्टि से ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए, उन्होंने 4 आम्नाय पीठों को उद्भाषित किया योग शिखोपनिषद के अनुसार। हमारे जीवन में जो 6 चक्र हैं, उनमें जो 4 चक्र हैं, उनमें एक एक आम्नाय पीठ की प्रतिष्ठा है योग शिखोपनिषद। उसको भौगोलिक धरातल पर भारतवर्ष में भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने 4 आम्नाय पीठों के रूप में उद्भाषित किया। प्राचीदिक में पूरी पीठ ऋग्वेद से संबद्ध। आप वैदिक होंगे, यहाँ 2 प्रकार की विधा चलती है। अब 4 दिशाओं का जो उच्चारण करते हैं 2 प्रकार से। एक उच्चारण की विधा क्या है? दक्षिणावर्त परिक्रमा, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर। एक है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यही बोलते हैं ना। तो अष्टोत्तर शतोपनिषदों में दोनों विधा से वेदों का वर्णन किया गया। जब हम दिक् का उच्चारण करते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व से संबद्ध ऋग्वेद, पश्चिम से संबद्ध यजुर्वेद, उत्तर से संबद्ध सामवेद, दक्षिण से संबद्ध अथर्ववेद। जब हम परिक्रमा की विधा अपनाते हैं तो पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, पूर्व से संबद्ध ऋग्वेद, दक्षिण से संबद्ध यजुर्वेद, जिस क्रम से आपने वेद पाठ किया, और पश्चिम से संबद्ध सामवेद, उत्तर से संबद्ध अथर्ववेद। दोनों गणना में ऋग्वेद से संबद्ध पूर्वावनाय सिद्ध होता है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने दक्षिणावर्त विधा से एक एक मठ से संबद्ध एक एक आम्नाय पीठ को उद्भाषित किया। उनमें 2 पीठ तो साक्षात 4 धामों में, 2 धामों में ही प्रतिष्ठित हैं, लेकिन भौगोलिक तालमेल बैठाने के लिए
उत्तर और दक्षिण के जो दो हमारे आमनाय मठ हैं वो पर्वतमाला के मध्य में, पूर्व और पश्चिम के जो आमनाय मठ हैं वो समुद्र के तट पर भौगोलिक दृष्टि से, लेकिन रामेश्वरम क्षेत्र से संबद्ध श्रृंगेरी है और बद्रीनाथ क्षेत्र से संबद्ध ज्योतिर्मठ है। 4 आमनाय पीठों को भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने ख्यापित किया। एक विचित्र बात है, ज़्यादा समय न लूँगा न दूंगा, थोड़ा विचार कीजिए। बौद्धों के शासनकाल में हमारी राजगद्दी भी हमारे पास नहीं थी, बौद्धों के पास थी। धर्मराज युधिष्ठिर के वंशधर सुधन्वा बौद्ध सम्राट के रूप में ख्यापित किए गए थे और व्यासपीठ भी हमारे हाथ में, व्यासगद्दी भी हमारे हाथ में नहीं थी, बौद्ध भिक्षुकों के हाथ में थी। वैदिक साम्राज्य का विलोप हो चुका था। तब भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने शासन तंत्र का शोधन किया। कुमारिल भट्टपाद ने, भगवान शंकराचार्य महाभाग ने सुधन्वा को मरवाया नहीं, सुधन्वा के हृदय का शोधन करके जो सुधन्वा बौद्ध सम्राट थे उनको सनातन सार्वभौम सम्राट के रूप में उद्भासित प्रतिष्ठित किया। और 4 ये जब बौद्ध विहार बोलते हैं ना, उसी का अपभ्रंश हो गया बिहार, एक प्रांत है ना बिहार, व को बो बोल देते हैं लोग। जैसे जल का बीज मंत्र है वम, लेकिन आप बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि में जाएंगे तो क्या कहेंगे बम। शब्द क्या है? वम, अमृत बीज। वम, लम माने पृथ्वी, वम माने जल, रम माने अग्नि और यम माने वायु और हम माने आकाश। हाय बरट लन, हाय बरट लन क्या है? ये बीजाक्षर है ना, ह य व र ल व्याकरण में। तो भगवान शंकराचार्य महाभाग ने रामेश्वरम क्षेत्र से संबद्ध एक आमनाय पीठ की स्थापना की। उधर उत्तराखंड में बद्रीनाथ क्षेत्र से संबद्ध 4 आमनाय पीठों की स्थापना करके वेद और वैदिक वांग्मय को सुरक्षित रखने का दायित्व मान्य आचार्यों को सौंपा। साथ ही साथ ज्ञान विज्ञान को ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त, उससे भी उच्च प्रज्ञा प्राप्त भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने विशुद्ध किया। हमारा आपका क्या दायित्व है? कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना और कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को पुनः उद्भासित करना। दोनों कार्य भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने किया। कालक्रम से बौद्धादि के चपेट में आकर जो विकृत ज्ञान विज्ञान था उसको उन्होंने विशुद्ध किया और कालक्रम से जो विलुप्त ज्ञान विज्ञान था उसको उन्होंने उद्भासित किया और धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की उन्होंने स्थापना की। व्यासपीठ को भी सुरक्षित किया भगवत पाद ने और शासन तंत्र को भी सुरक्षित और विशुद्ध किया और दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित किया। महाभारत लीजिए, ब्राह्मणों में मंत्र का बल, नीति का बल, क्षत्रियों में बाहुबल, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य होता है तो धर्म राज्य की स्थापना होती है, राम राज्य की स्थापना होती है। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने मान्य 4 आचार्यों को यह दायित्व दिया, भारत में धर्म राज्य प्रतिष्ठित रहे, वैदिक वांग्मय प्रतिष्ठित रहे। और मैं एक संकेत करता हूँ, वर्ण के तुल्य आश्रम भी तो अनादिकाल से वेदानुकूल प्राप्त हैं, लेकिन सन्यासियों के 10 प्रभेद भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने किया। आध्यात्मिक धरातल पर उनका अर्थ जो होता है वो मठामनाय अनुशासन में, मठामनाय सेतु में अंकित है, लेकिन भौतिक धरातल पर विचार करूं उसी को मैं कह के प्रवचन को विराम दे रहा हूं। सावधान। वन और अरण्य पूरी पीढ़ से संबद्ध सन्यासी होते थे। वन और अरण्य, महाभारत में वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व है। बृहद अरण्य का नाम होता वन, लघु वन का नाम होता अरण्य। हमारे अरण्य सुरक्षित रहें, वन सुरक्षित रहें, अरण्यवासी सुरक्षित रहें, वनवासी सुरक्षित रहें, इसका दायित्व किसको दिया? भगवान शंकराचार्य ने अरण्य नामा वन नामा सन्यासियों को। आज अरण्य सुरक्षित नहीं, वन सुरक्षित नहीं, अरण्यवासी सुरक्षित नहीं, वनवासी सुरक्षित नहीं। विधर्मियों की दाल गल रही है या नहीं?
संकेत। अरण्य का विलोप हो रहा है ना स्मार्ट सिटी के नाम पर, अरण्य का भी विलोप हो रहा है, वन का भी विलोप हो रहा है। ठीक, आगे आप चलिए श्रृंगेरी की ओर, दक्षिण की ओर। भारती सरस्वती पुरी, भारती सरस्वती पर्यायवाचक, उच्च शिक्षण संस्थान, मध्यम शिक्षण संस्थान, अवर शिक्षण संस्थान में नीति अध्यात्म विहीन शिक्षा पद्धति क्रियान्वित न हो, शिक्षा पद्धति ऐसी ना हो जो देहात्मवाद से संभावित हो या विधर्मियों की दाल जिस पे गल जाए। इसका दायित्व भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने सरस्वती भारती नामा सन्यासियों को दिया। अयोध्या मथुरा आदि जो सप्तपुरियां हैं वो सुरक्षित रहें, इसका दायित्व वो सुसंस्कृत रहें। जहाँ चाहिए ऋषिन कर वासा ता निशाचर करें निवासा, तुलसीदास जी ने लिखा। जहाँ ऋषियों का निवास चाहिए वहाँ निशाचर निवास करने लग गए, वो नहीं होना चाहिए। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने पुरियों में, आध्यात्मिक जो ये पुरियाँ हैं उनमें विधर्मियों की दाल न गले, इसका दायित्व पुरी नामा सन्यासी को दिया। अब द्वारका की ओर आइए, तीर्थ नामा सन्यासियों को दायित्व दिया, हमारे तीर्थ दूषित ना हो, तीर्थ दूषित ना हो दिया। यानी आश्रम नामा सन्यासियों को दायित्व दिया, हमारी आश्रम व्यवस्था विकृत ना हो। अब ज्योतिर्मठ की ओर आइए, सागर हमारे दूषित ना हो, सागर में रहने वाले रत्न इत्यादि प्राणी इत्यादि दूषित ना हो, सागर के तटवर्ती विधर्मी ना हो। कुछ वर्ष पहले पाकिस्तान ने जो भारत पर आक्रमण करवाया था मुंबई में, वो सागर की ओर से आए थे या नहीं? भगवान शंकराचार्य की सूझबूझ देखिए, सागर नामा सन्यासी को क्यों उद्भाषित किया? सागर, सागर के तटवर्ती ये सब के सब सुरक्षित रहे, हमारी सीमा सुरक्षित रहे। आगे क्या है जी? गिरि और पर्वत। गिरि का अर्थ जो होता है वही पर्वत का, लेकिन लघु पर्वत का नाम गिरि, बृहद गिरि का नाम पर्वत होता है। हमारे गिरि सुरक्षित रहें, पर्वत सुरक्षित रहें, गिरिवासी सुरक्षित रहें, पर्वतवासी सुरक्षित रहें। आज जो हमसे जगन्नाथ जी, जिनका यशोगान ऋग्वेद ने 2 ऋचाओं के माध्यम से किया है, जिन्हें दारु ब्रह्म कहा गया है ऋग्वेद में, वो हमको दृष्टिगोचर होते हैं। 114 वर्षों तक विधर्मियों के शासनकाल में, मूर्ति भंजकों के शासनकाल में जगन्नाथ जी का दर्शन सुलभ नहीं था। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने चिन्मय कर कमलों से दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथ आदि को पुनः प्रतिष्ठित किया। आज द्वारकाधीश का हमको द्वारकापुरी में दर्शन होता है। मूर्ति भंजकों के शासनकाल में द्वारकाधीश का दर्शन सुलभ नहीं था। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने अपने चिन्मय कर कमलों से श्री द्वारकाधीश को पुनः प्रतिष्ठित किया। आज बद्रीनाथ में बद्रीनाथ का दर्शन होता है। बद्री वन में नारद कुंड से 3 बार गोता लगाकर उनको अर्चा विग्रह को उद्भाषित किया। आज बद्रीनाथ का हमको अर्चा विग्रह के रूप में दर्शन होता है। इसका मतलब समग्र वैदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया और पूरे विश्व भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का आविर्भाव काल सचमुच में अंग्रेजों के द्वारा दूषित विधा के आधार पर नहीं, ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व है। उस समय विश्व में न कोई ईसा मसीह महान भाव थे, न उनके अनुयायी, न मोहम्मद महान भाव थे, न उनके अनुयायी। पूरे विश्व को सर्वे भवन सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वेषां मंगलम भूयात के सिद्धांत के आधार पर सबके सुखमय जीवन को प्रशस्त करने के लिए भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने जो प्रयास किया, सफल प्रयास, स्वतंत्र भारत में कितना रह गया है। एक वाक्य में कह दूं, ब्राह्मण हो या सन्यासी, जब कोई अपने पद का भोक्ता बन जाता है तब अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाता। प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री हो, अपने पद का जब भोक्ता बन जाते हैं, धनमान के लिए पद का उपयोग और विनियोग करते हैं, तो अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करते। दाल में नमक के समान अगर पद का उपभोक्ता बने बिना न रहा जाए तो दाल में नमक के समान आप पद का उपभोक्ता बनिए। ब्राह्मणों में न्यूनता कब से आई?
आचार्यों में न्यूनता कब से आई, इन मंत्रियों में न्यूनता कब से आई? जब से अपने पद का सर्वतोभावेन उपयोग और विनियोग धन मान के लिए करने लग गए। अपने दायित्व के लिए पद का निर्वाह होना चाहिए। आज हम आचार्यों का दायित्व होता है कि हम अपने दायित्व को समझकर उसे क्रियान्वित करें। 2-3 वाक्य सुन लीजिए और अपने अपने स्थान को गमन कीजिए। यहाँ की ट्रैफिक भी बड़ी विचित्र है, कई घंटे लग जाते हैं। सुनिए, नीचे से ऊपर बोलता हूँ। एक और समर्थ रामदास तो दूसरी ओर शिवाजी, दो का योग सैद्धांतिक, देश के लिए वरदान सिद्ध हुआ या नहीं। आगे चलिए, एक और विक्रमादित्य तो एक और नवरत्न तो दूसरी ओर विक्रमादित्य, और आगे चलिए तो एक और कुमारिल भट्ट भगवत पाद शंकराचार्य तो दूसरी ओर सुधन्वा, और आगे चलिए तो एक और वेदव्यास जी दूसरी ओर श्री कृष्ण, एक और धौम्य जी तो दूसरी ओर युधिष्ठिर। आगे चलिए, एक और वशिष्ठ जी तो दूसरी ओर राम जी, और आगे चलिए एक और भृगु जी तो दूसरी ओर कौन थे, पृथु जी, और आगे चलिए एक और नारद जी तो दूसरी ओर प्रहलाद जी। वरदान हुआ या नहीं? बीच और चलिए उधर जरा पीछे, तो एक और नारद जी तो ध्रुव जी। ये मंगलमय योग है या नहीं? आज आवश्यकता है कि व्यासपीठ के पुरोधा और शासन तंत्र के पुरोधा सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति लेकर देश के हित में अपने पद का उपयोग और विनियोग करें। हर हर महादेव।